वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सॉरी आई हैव टू क्लोज दिस अर्ली बट अब प्रोग्राम हमारा चल रहा है। देखो नरेंद्र जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। हैप्पी Thank शुक्र you. एवरीबॉडी। I'm always with you, always with you. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम एवरीवन एंड जय श्री कृष्ण। देखो शब्द लगा है। अब मेरे साथ छोटा मेरा डॉगी है, इज विद मी, आराम से लेट के सुन रहा है, विच इज अमेजिंग अमेजिंग। आई एम रियली looking at him. He's lying right near my feet and शब्द सुन रहा है। So, I mean, animals are so loving, faithful, and they do anything for you. Now मेरे पास आता है, he's everywhere following me. Everywhere I go, he follows me and he sits with me and प्यार करेगा, like shows so much love and affection. I wish we human beings learn something from the animals. They're so dedicated and very faithful. Anyway, enough about that. I just wanted to, um, welcome Narindaji. He always comes to our programs and he gives such good. सबको सबक इतना अच्छा से teaches everybody, सबक सिखाते हैं और बड़ा समझाते भी हैं सब कुछ in the most easy and very nice way, so that everybody can understand. And we should practice what he's been teaching us. He's been coming to DGCs for the last 4 years, I believe, and DGG is going to be maybe 5 years. He's going to be 5 years old uh, in a few days, actually in April, middle of April sometime. So we're going to celebrate 5 years, and just to let everybody know that we're having a big program on April 24th. Everybody's invited who are in the tri-state area. Anybody can come. And if you want, you can just directly get in touch with me and I'll give you all the information. बट अभी देखो कितना कुछ हो रहा है इन द वर्ल्ड पीस। अभी देखो संडे को इज अ बिग वेरी बिग डे। टू बिग थिंग्स आर हैपनिंग। वन इज गोना बी रमादान, दैट डे ईद हो रही है, एंड द नेक्स्ट थिंग एंड द सेम डे नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि द फर्स्ट one will be on that day. So the religions are so connected. One is finishing their thing and the other one is starting theirs. एंड अप्रैल 14, 13, 14 जो बैसाखी होती है, तब भी कितने सारे जूइश ट्रेडिशंस, कितनी चीज़ें हो रही हैं उस टाइम भी, लॉट ऑफ थिंग्स। सो सेम टाइम सेम डेट्स, ऐसे ही होता है। बट विदाउट एनी फर्दर अड्यू आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट नरेंद्र जी टू प्लीज़ डू ए हमारे लिए वर्ल्ड पीस प्रेयर शुरू करते हैं, बिकॉज आवर टॉपिक इज लिटिल बिट कनेक्टेड विद दैट, and we have to start off with the world peace. Is always if we don't need it now, we don't know. I don't know when. It's very important that we think about the world and what's happening. So Narendra ji, thank you so much for coming. Thank you. I'd like to hear from you. Welcome to our program. Thank you, Veeraji. And first of all, I want to compliment you. Oh, You have been running this program for the last approximately 5 years. yes. And the texture and the contents of this program are unique in many ways. You give a lot of opportunity to different types of speakers, and many melodious singers come here and give their divine singing to the community, and other from other fields also. This platform is very unique, and credit goes to you single-handedly. You have been doing that. For that, the biggest personality ingredient is the dedication, commitment, and perseverance to maintain the integrity of the program. And at the same time, you are humble and you are very amiable and friendly. God bless you. Let our friendship continue to be cemented. So we will start with the word prayer. Yes. Start with the word. ओम श्री परमात्मे नमः। गीता शास्मिधं पुण्यं या पठेत् प्रियता पुमान् विष्णु पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जिताः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि
पूर्वजन्म कृतानि च ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीय मामृतात् ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापा शान्ति रोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वाग्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामः शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 ॐ अस्तो मा सद्गमयं तमसो मा ज्योतिर्गम्यं मृत्योर्मा अमृतं गम्यम् ॐ शान्तिः 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 ॐ By the invocation of these divine mantras, we are seeking the blessings of the Almighty for world peace. These are very powerful mantras and they have the divine vibrations. And from this platform, we are sharing those divine vibrations for the entire world, where we are all connected. And let there be a peace, and we should become peaceful at our own level. Peace starts with us. So become peaceful, go and touch people, make them peaceful. Jai Shri Krishna. Back to so much. Vinay. बिल्कुल आपने ठीक बोला है नरेंद्र जी. वी नीड पीस पीस एंड पीस. वर्ल्ड पीस में आजकल क्या हो रहा है नरेंद्र जी? कुछ भी, सो मेनी कंट्रीज आर ट्राइंग, ये वो. मुझे तो लगता है कि और भी गड़बड़ हो रही है पहले से. दे आर किलिंग देयर ओन एथनिक पीपल इन देयर ओन कंट्री. देखो रिलीजन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, फिर क्या हो गया? है तो रिलीजन, उसमें भी प्रॉब्लम है. एथनिक ग्रुप्स, ये डिफरेंट एथनिक ग्रुप है, ये लोअर कास्ट है, ये लो ये है, उनको भी कुछ कर रहे हैं अपने मुल्क में ही, अपनी कंट्री में ही. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड पीस एंड यूएन ऑर्गेनाइजेशन? ये क्या कर रहे हैं सब? कितने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए हैं. दे मीट ऑन अ हाई लेवल, ऑल द हाई पीपल. कभी स्विट्जरलैंड में, कभी इधर दे मीट. बट व्हाट हैव दे अचीव्ड? द wars are still going on and nothing has been. The war in one European country, आपको मालूम है 3 साल से ऊपर हो गए हैं यूक्रेन में, more than 3 years. So what are all these high level meetings? क्या हो रहा है? तो नरेंद्र जी आप समझाओ हमको सबको कि what should we all do and
Why is this is going on? What should be done? It's a beautiful, timely question, and everybody inside they are asking what is happening. So let me share the wisdom. Eh, देखो, God is one. God is one. Messengers are many. Oh yeah. Messengers are many. God is one. And that is the problem. People forgot the message, they are worshipping the messengers. That is what has become. If God is one, then that's it. Worship Him. Worship Him. हम करते नहीं, हम मैसेंजर जो थे उनके पीछे लगे हुए हैं. We forgot the message and we are running around with the messengers. ये देखो, ये it's a such a huge, humongous creation. Billions and trillions of stars, galaxies, space, nebula. So humongous creation. और उसमें ये छोटी सी जो सबसे छोटी एंटिटी है वो हमारी अर्थ है. Yes, I know. हम भी घूम रहे हैं, राइट. उसके ऊपर उसकी हालत ये है कि 3/4 इज वाटर. Hmm. उसमें आप जा नहीं सकते. 1/4 इज अर्थ. Earth. 1/4 अर्थ के टुकड़े के ऊपर 8.3 बिलियन लोग आर क्राउडेड. 1/4 अर्थ के ऊपर 3 हिस्से पानी है, तो उसमें इतनी भीड़ है. 8.4 बिलियन पीपल God. आर क्राउडेड देयर. पानी में आप जा नहीं सकते, एंड आसमान में आप जा नहीं सकते. यू नीड ए स्पेशल कॉस्ट्यूम. $1 million के कॉस्ट्यूम डाल के आपको ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो ये बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी. लिटरली, लुकिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, वी आर द प्रिजनर्स. आप भाग नहीं सकते यहाँ से. पानी में नहीं जा सकते, आकाश में नहीं जा सकते, इसी में घूमना पड़ेगा. सो एज आई सेड इट बिफोर, गॉड इज वन, मैसेंजर्स आर मैनी. तो इसमें डिफरेंस है कि ये जो रिलीजन है, दीज आर मैन मेड. Hmm. अभी आपके पास एक ब्यूटीफुल सोल सो रही है, जो खेल रही है, जो बच्चा है आपके साइड पे है, उसकी कोई लैंग्वेज नहीं है. No. वो हंसता है तो आप हंस पड़ते हो, वो ऊपर हाथ उठाता है तो आप उसको उठा लेते हो. तो विदाउट यूजिंग एनी लैंग्वेज, your communication with that lovable child is so unique. आप वो देख भी रहे हो उसको. Right here. Each and every emotion you interpret without, he is not using any language, right? So the language of God is love, but we don't use. देखो, this was like I gave you the definition of the globe. It is such a small entity. तो उसमें जो है, उस एंटिटी के जो इतनी छोटी एंटिटी है, उसमें उसको हमने 198 कंट्रीज छोटे छोटे बना के उसको उसके टुकड़े कर दिए. ये छोटी सी एंटिटी 1/4 अर्थ को 198 कंट्रीज हैं, Hmm. उसको डिवाइड कर दिया. हर कंट्री ने अपनी बॉर्डर बना दिया. हर कंट्री की अपनी मिलिट्री है. हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है, राइट. तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी किसने क्रिएट की? मैन. Man. मैन मीन्स मैन, जहाँ भी वो रहता है. तो ये हमने क्रिएट कर दिया ये सारा सीन. वाहे गुरु ने तो आपको एक अच्छी अच्छी उस दुनिया में हम रहते नहीं है, जो वाहे गुरु की बनाई हुई दुनिया है, ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, क्राइस्ट की बनाई हुई दुनिया है, उसमें हम नहीं रहते. उसमें हम नहीं रहते. अपनी बनाई हुई दुनिया में हम रह रहे हैं. आप देखो, एक पक्षी है, आप होके आए हो दूसरे कंट्रीज में, आई विल नॉट नेम, लेकिन आपने देखा है कि आप
का मोहल्ला जो था वहां से 10 मील दूर था, आप वहां नहीं जा सके, Yes. क्योंकि बॉर्डर था। अगर आप जाते तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम, राइट? Yes. दैट इज नो मूट पॉइंट कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। पक्षी एक उड़ता है, वो चाहे पाकिस्तान जाए, चाहे चाइना जाए, चाहे रशिया घूम के आ जाए, इंडिया आ जाए, कोई उसको नहीं मारता। उसको पता भी नहीं है कि ये क्या नीचे हो रहा है। बिल्कुल। आप भी अगर प्लेन में आप जाते हो, नीचे देखो, देयर इज नो रशिया, देयर इज नो अमृतसर, देयर इज नो दिल्ली एंड ऑल दैट स्टफ। दे ऑल डिसअपीयर, दे ऑल डिसअपीयर। और भी ऊपर जाओ तो ये अर्थ भी नहीं दिखाई देती, No. छोटी सी बन जाती है। लेकिन जब एयरपोर्ट पे हम लैंड करते हैं, सबको विजिबल हो जाता है, ओ मैं तो दिल्ली आ गया, वो मैं अमृतसर चला गया, लाइक दैट, राइट? सो दिस इज, वी हैव टू थिंक ओवर इट। ये जो वर्ल्ड पीस की जो थॉट थी, वो इट जनरेटेड फ्रॉम वन वर्ड, नॉट 198 वर्ड्स। हर देश की अपनी दुनिया है। उनके सी जो है 100 माइल्स, आपका जो कंट्री है, तो पानी में 100 माइल आपका पानी है, उसको हम अपनी कंट्री के नाम से बुलाते हैं, राइट? उसमें आप जा नहीं सकते। देख, और समुद्र को कोई पता नहीं, मछलियों को कोई पता नहीं ये कर क्या रहे हैं। मछलियां तो नीचे घूम रही हैं, व्हेल्स भी हैं, दी होल सृष्टि is there। जितनी सृष्टि पानी के अंदर है उतनी बाहर नहीं है। उसको कोई नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो। ऐसे ही पक्षियों को नहीं पता। एक स्क्वायरल है, वो एक ट्री से दूसरे में चली जाती है, दूसरे, आई मीन आपके ट्री से उतर का जो ये साथ का पड़ोसी का ट्री है, उसके ऊपर घूमती फिरती फिर उधर चली जाती है, फिर आ जाती है। उसको नहीं पता कि ये इनका मकान नहीं है, ये उनका मकान है। लेकिन आदमी ने ऐसा एक डिवीजन क्रिएट की है मेंटल, कि हमने भी बॉर्डर बनाए हुए हैं, राइट? तो No. उसमें देन लीगल राइट्स हैं। ट्रेस पास होगा अगर उसकी परमिशन के बिना आप गए, राइट? तो अगर इतनी रिस्ट्रिक्शन है चारों तरफ, तो विच पीस वी आर लुकिंग फॉर? Yeah. ऐसे ही हमारे अंदर की जो सृष्टि है, एक तो बाहर की है, एक अंदर की सृष्टि जो है। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ बॉडीज। एक है फिजिकल बॉडी, जो मिरर में हम देखते हैं, मिरर हमें दिखाता है कि यू आर दिस। लेकिन भगवत गीता का ज्ञान है कि यू आर नॉट द बॉडीज, यू आर लिविंग इन द बॉडी। दिस डिस्टिंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वी आर नॉट द बॉडीज, वी आर लिविंग इन द बॉडीज। Yes. अगर हम इसको डाइजेस्ट करें, इस विजडम को, कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर लिविंग इन द बॉडी। अब देखो, हम बॉडीज को देखकर ये सारे झगड़े करते हैं। कोई सिख है, वो पगड़ी जरूरी है, किसी ने टोपी डाली है तो मुस्लिम बन गया, तो किसी ने नहीं डाली तो कुछ और बन गया, किसी ने गेरू कपड़े डाले तो बुद्धिस्ट बन गया। बाहर की बॉडी को देख के हमने सोसाइटी को डिवाइड किया, राइट? और भगवत गीता कहती है यू आर नॉट द बॉडी, यू आर लिविंग इन द बॉडी। तो ये जो आउटर फ्रेम है, ये देखो, हम मेडिकल एग्जाम के लिए जाते हैं, राइट? Yes. जब वो एमआरआई करते हैं या एक्सरे करते हैं, उसमें आपकी ये बॉडी डिसअपियर हो जाती है, राइट? एक्सरे में कोई मोटा चिट्टा वाइट ब्लैक सुंदर सुंदर अगली कुछ भी नहीं रहता। वो जो जो स्केलेटन आता है दिखाते हैं, वी आर दैट। Yeah. उसमें कोई झगड़ा नहीं है, क्योंकि वो सब एक जैसे हैं, राइट? दैट इज द प्रॉब्लम। हम बाहर के शरीर को देखकर रिएक्ट करते हैं, राइट? तो अंदर का जो शरीर है आपका, हमारी 3 बॉडीज हैं। एक है फिजिकल बॉडी, इसके पीछे है इमोशनल बॉडी, मेड ऑफ योर इमोशंस, एंड उसके पीछे है स्पिरिचुअल बॉडी। तो until and unless you cross these 2 borders, physical body and emotional body, आप स्पिरिचुअल बॉडी, स्पिरिचुअल लेयर में जाते ही नहीं है, आपकी वाहे गुरु से बात हो ही नहीं सकती। तो इसलिए इतने गुरुद्वारे हो गए,
हजारों मंदिर, हजारों मस्जिदें, चर्चेज एंड सिनागॉग्स एंड सो फोर्थ एंड सो ऑन, लेकिन बात उल्टी हो गई। तो ईश्वर से बात तो हो ही नहीं रही। इतनी लड़ाइयाँ झगड़े करके फिर हम शाम को चर्च में जाते हैं या टेम्पल जैसे में। बेस्ट एग्जांपल वीरेंद्र जी, हम्म, एग्जांपल, मतलब जैसे एक एरिया है, एग्जांपल हिक्सविल एग्जांपल देती हूँ। एक गली में जाओ, इतना बड़ा गुरुद्वारा खुला हुआ है, राइट? उसको सड़क क्रॉस करो, थोड़ा उधर जाओ, एक और गुरुद्वारा खुल गया, इधर जाओ कुछ और। व्हाट दे आर डूइंग इज टेकिंग द पॉपुलेशन, द सेम पीपल आर गोइंग। ज़्यादा लोग तो कितने लाते हैं, नए लोग कितने आ जाते हैं, उसी एरिया के लोग आते हैं, थोड़े से बहुत बाहर से आते हैं, पॉपुलेशन इज द सेम जाने वाली। सो व्हाट इज हैपनिंग, दे आर डिवाइडिंग द पीपल फ्रॉम दैट गुरुद्वारा टू द अदर गुरुद्वारा, राइट? yeah, तो पीपल को इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, दे आर ट्राइंग टू गेट देम टू द न्यू वन। नए वाला खोला है तो नए में आए। तो इसमें प्रॉब्लम यह है कि दोनों गुरुद्वारे में पॉपुलेशन कम है, कम हो जाती है, हाफ इधर हाफ उधर चली गई। तो व्हाट इज द यूज ऑफ डूइंग दिस थिंग? the idea is व्हाट इज द यूज? it's the display of egos. सेम थिंग विद द मंदिर्स। मैंने देखा उस दिन एक नया मंदिर खुला हुआ है, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज ड्राइविंग समवेयर, तो मैं कहा अभी तो इधर भी है उधर भी, ना दैट वेरी क्लोज। सो पीपल पीपल तो उतनी, पॉपुलेशन तो उतनी ही है। बिल्कुल They're बिल्कुल। gonna go. Where they're gonna go? They're going the same, इधर कभी इधर तो आधा खाली हो गया, आधा वहां चले गए, आधा फिर जगह खाली हो गई। तो what I'm thinking is that this is the same philosophy that human beings are, people are doing in the society, the same thing. They're doing the same thing. एक फ्रेंड उसका है, उसको वहां से ले जाओ, उधर से वहां, the same thing is going on in the higher level also. Where is this gonna end? क्या जो ये जो आपने गुरुद्वारा की एग्जांपल दी है, ऐसे ही मंदिर है। हाँ, वही तो गली मैं कह रहा हूँ, गली सेम गली थिंग। गली 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 में मंदिर है। एंड इवन मॉस्क्स। Mosque, yeah, same thing with the mosques. आई बिलोंग टू मल्टी फेथ फोरम, राइट। हम जाते हैं बहुत जगह। मैंने देखा है कि सफर काउंटी में इतनी मस्जिद है ही Yeah, नहीं। yeah, oh yeah. इट इज अमेजिंग। एंड नासिर काउंटी में भी। सो द आइडिया, दिस इज व्हाट आवर डिस्कशन इज, कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिवीजन। ये डिवाइड हम करे जा रहे हैं। ईश्वर तो कहते हैं कि लव करो। मैं सबको देखो, ईश्वर की जो भाषा है मैंने अभी बताई है आपकी। बच्चा आपके पास है साइड पे, राइट। Yeah, he's उसकी कोई भाषा नहीं। कोई देखो बात। नर्सरी, देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। नर्सरी में आप जाओ, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, लेट अस से 10 न्यू बॉर्न बेबीज हैं वहाँ, राइट। तो हम जाते हैं, तो अगर मैंने उठा लिया बच्चा जो नर्स का ये आपका है, मैंने उठा लिया तो वो हिंदू बन गया। उसका कोई रिलीजन नहीं है, मैंने तो स्टैंप लगा दी। वो तो एक नवजात शिशु है, टेंडर है। Yeah. उसका कोई रिलीजन, उसका रिलीजन ईश्वर है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। वो आपकी लैंग्वेज भी यूज नहीं करता, राइट। तो वो जो हम वो हैं। ये हमने उठा के उसको स्टैंप लगा दी कि ये हिंदू है। सिख ने उठा लिया तो सिख बन गया, राइट। मुस्लिम ने उठा लिया मुस्लिम बन गया, क्रिश्चियन बन गया, जूश बन गया। जो जो उठाता है वो उसकी स्टैंप उसके ऊपर लगा देता है कि ये मेरा है। उसको ये पता ही नहीं है कौन। और देखो ना, जब मैटरनिटी वार्ड में जाओ, जब बच्चे होते हैं, दे ऑल लुक द सेम, छोटे से, दे मूव द सेम, सेम ही रोते हैं, सेम ही, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, कुछ अगर फर्क नहीं। अगर नर्स आपको ना, अगर बिहेवियर, नर्स नहीं, अगर नर्स आपको ना बताए कि ये या आप, तो आप कोई और उठा लेते हो, राइट। नाम लिखा होता है, आईडी लिखी होती है, आजकल तो वेरी स्ट्रिक्ट। नहीं, बट मैं देखने, कहता हूँ अगर ना लिखा हुआ हो, हाँ हाँ, देन राइट, अनोनिमस हो, तो हाँ हम कोई भी उठा सकते हैं। जिसको उठा लिया, जिसने उठाया उसने अपनी स्टैंप लगा दी, राइट। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ये दुनिया जो है ईश्वर की बनाई हुई दुनिया है, राइट। तो इसकी जो लैंग्वेज है वो लव है। जैसे बच्चे की लैंग्वेज है, लव है। आपकी कम्युनिकेशन उसके साथ होती है। सो फॉर लव, यही बात है। जब दोनों में
लेडी है या आदमी है या औरत है, किसी भी चीज में जब प्यार होता है, सच्चा प्यार, तो लैंग्वेज यूज ही नहीं होती। कमरे में 100 बंदे बैठे हों, अगर जिससे आप प्यार करते हो वो एंटर करे कमरे में, तो आप, वो आपकी तरफ देख ले, आप उसकी तरफ देख लो, तो सारी बात हो जाती है। एंड कोई कोई लैंग्वेज आपने यूज की ही नहीं और किसी को पता भी नहीं है, लेकिन आपको पता है आपने क्या किया, और जिससे आप प्यार करते हो उसको भी पता है क्या हो गया, हो गया। राइट? बिकॉज दैट इज द ब्यूटी ऑफ लव, जो हम भूल गए हैं, हम यूज नहीं करते उसको। हम अपनी लैंग्वेज यूज करते हैं, और जब लैंग्वेज यूज करते हैं वो प्रेजुडिस, वही। क्योंकि हमारा अपना माइंड देखो, मैंने अभी आपको बताया कि इमोशनल है, फिजिकल बॉडी के पीछे इमोशनल बॉडी है, और इमोशनल बॉडी का जो किंग है वो माइंड है, आपका वही। माइंड। सो until योर माइंड इज कंट्रोल्ड, फोकस्ड, आपकी थॉट प्रोसेस स्क्रीन नहीं होती। The process, spiritual process is mind produces thoughts. ये बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है। माइंड produces thoughts and then it goes to the screening process. जो आपके शरीर में स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो है आपकी इंटेलेक्ट, और उसमें है एक बिग पार्ट इज द मेमोरी। सो व्हेन द थॉट्स आर बीइंग स्क्रीन्ड बाय योर इंटेलेक्ट, राइट, और उसके बीच में मेमोरी है। इफ द इंटेलेक्ट इज वर्किंग एट इट्स ऑप्टिमम लेवल, तो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस बड़ा अच्छा हो जाता है। यू आर होल्डिंग द गुडनेस ऑफ अदर्स इन योर मेमोरी, यू आर सेविंग दैट, एंड यू आर डिलीटिंग द नेगेटिव थिंग्स ऑफ अदर्स, नेगेटिविटी जो है। तो आपकी मेमोरी बड़ी शार्प रहती है, और उसमें लव रहता है, क्योंकि आपने अपनी मेमोरी में वो ही रोका हुआ। अदरवाइज होता क्या है, जब हम नेगेटिव चीज़ें सेव करते हैं, तो हम कह दे मुंह से तो कह देते हैं, वर्बली कह देते हैं कि आई फॉरगिव यू एंड आई, बट हम फॉरगेट नहीं करते, क्योंकि वो मेमोरी में है। अब मेमोरी, अगर वो बंदा जो है 10 साल के बाद भी आपको मिलता, तो इट कम्स बैक विद वेंजेंस, कि ये तो वही बंदा है, आपकी मेमोरी में वो चीज़, क्योंकि मैंने डिलीट नहीं की। सो until the process is reversed, this is my memory, आपकी मेमोरी आपकी है, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हम अपने सेल फोन पे, राइट, एट द एंड ऑफ द डे वी डिलीट irrelevant information, ईमेल, मैसेजेस एंड ऑल दैट, क्योंकि मेमोरी अदरवाइज आपको मैसेज आ जाएगा, द मेमोरी इज फिनिश्ड, यू हैव टू बाय मोर मेमोरी, राइट। लेकिन ह्यूमन इन ह्यूमन वी इन कांट ह्यूमन फाइट, हम भी कैसे ऐसे माइंड जितनी भगवान ने दी उतनी है, बट ये इनमें कर सकते हो। but in human body you cannot buy memory, ओह ये दैट्स राइट, जो मिली हुई है मिली हुई है। ये उतनी है। दैट इज द मोट पॉइंट, कि आजकल सोशल साइकिल में, घरों में, प्रोविंशियल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि बंदे तो वही हैं। अगर तो मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, राइट, तो वो तो एक डेजिग्नेशन है, बट आई एम द सेम पर्सन एज आई वाज बिफोर द प्रेसिडेंट, राइट। वो तो एक सिस्टम ने मुझे बना दिया, लेकिन अगर मैं गलत बंदा हूँ, हैं, तो एट ए नेशनल लेवल आई विल डू रॉन्ग थिंग्स, दैट्स राइट। तो अगर इंडिविजुअली आई एम वेरी रिवेंजफुल, एंड टुमारो आई बिकम द प्रेसिडेंट, आई एम स्टिल रिवेंजफुल, उसका मेरे पर्सनालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा। सो इट इज माई, देखो, इट इज माई सबकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि एट द एंड ऑफ द डे, राइट, review your day and delete the negativity थिंग्स या and save the good thing जो आपने की है या किसी ने आपके साथ की है। So if I practice this art for many years, क्योंकि ये ऐसे आता नहीं है, ये वो स्विमिंग वाली बात नहीं है कि 8-10 महीने आपने स्विमिंग के लेसन लिए तो यू आर ए स्विमर। ये जो पर्सनल ग्रोथ है, टेक्स मैनी ईयर्स ऑफ ए डेडिकेशन, कमिटमेंट, जिसको हम कहते हैं योगा एंड मेडिटेशन।
योगा एंड मेडिटेशन के थ्रू, अब देखो इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने कहा कि योगा डे, मेडिटेशन डे, दे रिकग्नाइज कि इसके थ्रू पर्सनैलिटी चेंज होती है। और योगा एंड मेडिटेशन, यू डोंट नीड एनी लैंग्वेज, इट इज अ प्रोसेस टू डिसिप्लिन योर इनर लेयर्स ऑफ इमोशनल बॉडी। सो योर क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वर्ल्ड में इतना उथल पुथल मची हुई है, इतनी किलिंग है, तो वो इसीलिए है। एक तो ये है कि दूसरा बिजनेस है, बिजनेस बन गया। देखो इतने लीथल आर्मामेंट्स बन रहे हैं, राइट, डॉलर की। जिसके पास सबसे लीथल डॉक्यूमेंट आर्मामेंट, वो कंट्री पावरफुल है, राइट। तो लीथल जो आप बनाते हो वो लोगों को मारने के लिए है ना, राइट। कोई ऐसा नहीं कहता कि भाई मैं लेट अस मेक एक गुरुद्वारा एट हाँ, इंटरनेशनल लेवल एंड लेट अस टॉक ऑफ पीस। नहीं, वो गली गली में गुरुद्वारे खुल गए हैं। वो वही जो है वो बिजनेस बन गए, बिजनेस नॉट गुड। उनके। वही मैं कह रही हूँ, यहाँ पर भी शुरू हो गया, इंडिया में भी तो है, इंडिया में भी ऐसे ही है। अगर रिचमंड हिल में जाओ, मेरे ख्याल दे आर 7, रिचमंड इज अ वेरी नॉट अ वेरी बिग प्लेस, क्वींस में टाइप, इट्स नॉट दैट बिग, कंजेस्टेड है, उसमें 6-7 गुरुद्वारे हैं। गलियों गलियों में है। मैं जब हम यहाँ आए थे, एक था मेन मेन गुरुद्वारा, रिचमंड हिल वाला गुरुद्वारा, नाइस एंड बिग, वी यूज्ड टू गो देयर। बाद में मुझे पता चला कि इतने सारे, मोर एंड मोर, 6-7 फ्लशिंग में भी हो गया, कितने पहले नहीं थे इतने। या सो मेनी गुरुद्वाराज ओवर देयर। एंड हमारे हिक्सविल में देखो, ये इधर लॉन्ग आइलैंड में, टचिंग द क्वींस, 3-4 गुरुद्वारे यहाँ पे नए नए खुल गए, 2-3 तो नए खुल गए मेरे होते, अब सीन। पॉपुलेशन उतनी है, इतने बड़े बड़े गुरुद्वारे, आई हैव टू गो टू द न्यू वन, आई डिडंट गो, द 2 न्यू ones I did not go yet. I didn't get a chance to. So हिक्सविल में पॉपुलेशन तो इतनी बड़ी नहीं है, yes, लेकिन मंदिर गुरुद्वारे बड़े बन गए। बहुत बन गया। तो इसलिए इन रिलीजियस प्लेसेस पे जाने से, राइट, किसी की कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। वो 10-15 मिनट उसको सुनते हैं, ज्ञानी जी को या पंडित जी को, और फिर खाने के ऊपर सो गए, खाना। फिर वो बिल्कुल आपने। फिर वो कहेंगे जी वहाँ तो आम का अचार बड़ा अच्छा था, वहाँ ये सब्जी बड़ी अच्छी थी। दे तो जो मैं, मैसेज था, जो नहीं नहीं, मैसेज। तो क्या होता है, मैंने कहीं, आई मीन आई हेट टू से दैट सम पीपल, दे कम इन फैमिलीज के साथ एवरी फ्राइडे, फ्राइडे को काफ़ी आते हैं काम से इधर उधर, पूरा ग्रुप बन के अपना फैमिली का, थोड़ी देर मत्था 5-10 मिनट ठहरे, नीचे गए, खाना, भूख लगी होती है, काम से आए हैं, सो ऑल गो एंड डाउन स्टेयर्स। अगर आप ऊपर से नीचे जाओ ना, नीचे की पॉपुलेशन डबल है आने वाले की। पीपल आर या नॉट आउटसाइड लिसनिंग, दे आर आउटसाइड। एंड लंगर भी आजकल यहाँ पर तो अमेरिका में इतना लेविश होता है, इतना लेविश, सिंपल होना चाहिए, एक दाल होगी, ये नहीं, वैरायटी वैरायटी ऑफ फूड, चाइनीज, पिज़्ज़ा, डिज़र्ट्स, पता नहीं कितने किस्म के डिज़र्ट्स, चाइनीज़ खाना, मतलब इंडियन टाइप ऑफ खाना, फिर छोले भटूरे, फिर चाट पापड़ी, पता नहीं क्या 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 हो रहा है ये तमाशा। लोग, पीपल आर ऑल देयर, लाइनें लगी हुई हैं खाने की। ये तो यही मैं जो आपका क्वेश्चन था कि अगर रिलीजियस प्लेसेस पे हम ये तमाशा करते हैं और रोज करते हैं, ये नहीं कि एक दिन गलती हो गई भी मैं ठीक कर लूंगा, नहीं। अब जैसे आपने कहा एग्जाम्पल देखिए, ऑफिस से आए, ऊपर मत्था टेका और नीचे जो खाना तैयार है, तो ये जो रूटीन है, इसमें पर्सनल ग्रोथ कहाँ से होगी, कहाँ से होगी। तो रिलीजन का भी मजाक उड़ा दिया। यही तो मैं कह रही हूँ, दिस इज लाइक, इतने हाँ, देखो इतने 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 अच्छे शब्द हैं, उनको सुनता कोई नहीं। और किसी ने सुना है तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करता। देखो शब्द कह देने या मंत्र बोल देने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप उसका उस थॉट का अभ्यास नहीं करते, राइट। तो ये दैट इज व्हाई दिस हैज वर्ल्ड हैज बिकम सो विशियस प्लेस। इसमें जो है प्यार नहीं रहा, प्यार हैज बीन रिप्लेस्ड बाय जेलसी। देखो नरेंद्र जी, जो टॉप, जो नया गुरुद्वारा या मंदिर जो जो भी खोलते हैं, मॉस्क मॉस्क भी हो गया, उनके टॉप वाले बंदों की लड़ाई हो जाती है। इसी जैसे लाइक ए वर्ल्ड, जैसे कोई कंट्री है,
उसने बनना है, मैं प्रेसिडेंट बनना, लड़ाई होती है, उनकी डिबेट होती है, ये होता है। तो सेम थिंग जो इन जगह में भी होते हैं, जो टॉप में होते हैं, उनकी लड़ाई हो जाती है। देन दे सेड ओके ठीक, लड़ाई होगी, आई कैन बिकम द प्रेसिडेंट, या मैं ये नहीं बनता, मैं मुझे ये बनना है, वो बनना है, वो अपना खोल लेते हैं दूसरा, अपने फॉलोअर्स लेके दे ओपन अनदर प्लेस। तो देखो जो आपने कहा, मतलब जो क्या, इट्स नॉट गुड। जो आपने कहा है, वो जो बंदा गुरुद्वारे में प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट कर रहा है, वो हिसाब से आगे ज्ञानी जी के पास बैठा, राइट, या सुनता था ताकि उस ताकि भी लोग मुझे देखें, मैं रोज आता हूँ यहाँ बैठता हूँ। तो उसने समझा तो कुछ भी नहीं है। जब इलेक्शन आते हैं तो ही हैज नो नॉलेज ऑफ गुरबानी, ये मैं कहता मैं यही तो कह रही हूँ ना कि हाई लेवल में, ये इंडिया में भी मैंने देखा है, एवरीवेयर यू हैव ऑल दिस रिलीजियस प्लेसेस। मैं मेरी फ्रेंड है, शी इज मुस्लिम, वो कहते उधर भी ऐसे होते हैं, ऐसे ही करते हैं। वो भी कह हूँ। रही यस, थी है। तो ये मंदिरों में भी वो सब कहते हैं, ऐसे ही होते। आई ओनली नो अबाउट द गुरुद्वारा मोर बिकॉज आई गो मोर देयर। तो एंड आई बीन हेयरिंग फ्रॉम माय पेरेंट्स कि उसकी ये हो गया, लड़ाई होगी, उसने एक और खोल, लाइक फ्रॉम चाइल्डहुड आई बीन हेयरिंग lot of things, but now it's getting more. I'm noticing now because I'm myself, I'm a mother, so and a person who lives in this area. तो मैं देखती रहती हूँ, मैं क्या इतने सारे कैसे, पॉपुलेशन तो ज़्यादा बढ़ गई है थोड़ी बहुत, ऐसी बात नहीं है। नॉट टू द लेवल दैट यू हैव टू हैव नेक्स्ट गली में एक और खुल गया है, एक गली में ये है, एक दूसरे गली में वो खुला है। यू नो दैट्स नॉट गुड बिकॉज देन यू आर टेकिंग अवे ईच अदर्स पॉपुलेशन। और इससे ही जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, राइट, राइट। आप भी पता आपको कितनी है, राइट, उसमें भी यही है, इतनी हेट है, ओ इतनी हेट है। अगर आप एक टीम को ज्वाइन कर रहे हो, राइट, अगर वो टीम हार गई, राइट, तो यू आर इन ट्रबल। जो वो टीम तो जीते, आप हाई लेवल की बात कर रहे हो। अगर छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन जो आज के खुले हुए हैं, इतने इंडियंस के ऑर्गेनाइजेशन में, कल पहले तो एक दो थे, अब जहाँ भी जाओ ये पता नहीं कौन कौन से नाम से इतने ऑर्गेनाइजेशन खुले हुए हैं। सब में प्रेसिडेंट बना है, कोई ये बना हुआ है, कोई वो बना हुआ है, कोई ये बना हुआ है, इलेक्शन हो रही है, ये हो रहा है। वाई दे ऑलवेडी वांट्स टू बी इन द टॉप, कहता पोजीशन, सबको पोजीशन चाहिए। तो एवरीबॉडी नाउ, वांट्स ए पोजीशन। Now, going back to our original question, world peace, या हम तो शेक्सपियर की पीस नहीं बना सके। वही तो मेरा मतलब है कि वर्ल्ड में कैसे होगा, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू आर लोकल, देन आगे बढ़ती है चीज़, देन वर्ल्ड, यस, फिर सिटी के लेवल में हो जाता है, फिर कंट्री के लेवल में होएगा, फिर वर्ल्ड के लेवल में। दैट्स वाई नहीं, ऑल। मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर एक बंदा वेरी पॉपुलर तो है, लेकिन उसमें सारे डिफेक्ट हैं, ही ईगोमेनिया, वो लोगों को हार्ड टाइम भी देता है, लोग उससे डरते हैं। अगर वो प्रेसिडेंट बन जाए, जैसे अब भी बना हुआ है कोई प्रेसिडेंट, तो लोग कितने डरेंगे, राइट, उस बंदे से। और उस नेशन का क्या करना है, वो तो डिवाइड कर देगा और लोगों को, राइट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। People at the helm of the affairs in each and every country, with the exception of few, they are dividing the country, world more and more and more. और उसके पीछे जो thought है, every country is producing enormous amount of lethal armaments. जितनी देर वो देखो, अगर मैंने तलवारें या बंदूकें और बड़ा असला अपने घर में रखा हुआ है, तो मैंने अगर घर में मंदिर भी बनाया हुआ है, गुरुद्वारा बनाया हुआ है, इट हैज नो मीनिंग। मुझे उसको फेंकना पड़ेगा। हम फेंकते नहीं हैं, हम तो और बनाई जा रहे हैं, और बनाई जा रहे हैं। जैसे पहले की थी स्मोकिंग थी, आप कहते हैं एवरीबॉडी वाज स्मोकिंग, राइट, सारी पिक्चर जो होती है फिल्म इंडस्ट्री स्मोकिंग के ऊपर थी। अब स्मोकिंग उन्होंने कहते हैं कैंसर, कैंसरस। तो लोगों ने यहाँ तो छोड़ दी इस कंट्री में, लेकिन जो गरीब कंट्री है, जो फैक्ट्रियां थी बनाने वाली, अब वो यहाँ नहीं तो वहाँ बेच रहे हैं। होना तो चाहिए था कि फैक्ट्रियों को बंद किया जाए, वो कोई करता नहीं है, बिकॉज इट्स ए बिजनेस। money making, ऐसे, the money making thing, you see. या तो ऐसे ही वर्ल्ड में, वर्ल्ड पीस के लिए जो हमारा सब्जेक्ट था वो ये है कि वर्ल्ड टाइप के थिंकर होने चाहिए। और वो इस बिलीव को, इस बात का बिलीव करते हो
ये जो देश बनाए हैं हमने, ये अब देखो, आई एम गिविंग एग्जांपल, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, राइट, बर्मा, Hmm. it was one country. It Hmm. was one country. Right. In 50 years, it became 4 countries, right? Or each country is a problem. वही लोग जिनके घर आप होके आए हो, राइट, वो Hmm. आपको प्यार करते हैं, लेकिन ऊपर वाले करने नहीं दे रहे। हाँ, वो तो कहते हैं कि हम पब्लिक है, they were so loving, so nice, very respectful, बड़ी सेवा उन्होंने करी है, बहुत अच्छे लोग थे। अब हाई लेवल में तो फिर देखो ना, ईगो हो जाता है बीच में, जैसे आप कहते हो ईगो, ईगो आ गई बीच में, हम बेटर है, हम ये हैं, हम वो हैं, तो अगर व्हाटएवर। वैसे भी देखो देखो दुनिया के किसी कंट्री में आप जाओ एज ए टूरिस्ट, राइट, हम्म। सारे लोग आपको अच्छी तरह मिलते हैं, ओ या, राइट। तो दैट मीन लोग तो अच्छे हैं। यस, लोग, आप किसी भी कंट्री में जाओ, चाहे छोटे से छोटा हो, वहाँ लोग इतने प्यार से आपको वेरी मिलते हैं। वेरी वेरी नाइस। आई मीन आई वाज, पाकिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, मैं आई वांटेड टू गो बिकॉज माय पेरेंट्स वर फ्रॉम देयर ओरिजिनली, माय हस्बैंड्स पेरेंट्स, इन लॉज वो भी वहीं के थे, तो मैं कहा एक बार लाइफ में मैंने ज़रूर जाना है देखने के लिए। नाउ अभी सो रहा है, आई हैड नो प्रॉब्लम विद एनीथिंग विद द लोकल पीपल। थोड़े बहुत जो हमारे अपने थे लोग दूसरे, दे आर सम ईगो, आई एम नॉट गोना लाई। लोकल पीपल नो, नथिंग, खाना पीना, इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी, आई कैन नॉट इवन टेल यू। पीपल आउट ऑफ द वे दे वर नाइस। सो व्हेन यू वॉक हियर, गुरुद्वारे में जाओ, इधर जाओ, तो हम तो काफ़ी सारे गुरुद्वारे में भी गया, सौ तो हालत कैसी थी। दे ट्राई टू मेंटेन, बट यू नो, बट देवर लोकल, देवर पीपल स्टेइंग इन द गुरुद्वारास, जो पाठ करते हैं, रोज़ करते हैं, दे वर गुड टू सी। और लंगर भी देते हैं, लंगर भी बना के देते हैं, दे वर मेकिंग। सो ऑल्सो वन मोर थिंग नरेंद्र जी, मैं कहना चाहता, जैसे आपने पहले भी कहा था अभी, कि ऑल दिस कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, very few countries are where they don't have poor people or people who are don't have any. Every country in the world has people, some people who don't have enough to eat, not enough good place to stay, बच्चे होते हैं, उनको एजुकेशन नहीं, खाने नहीं मिलता, not enough food, but yet the same countries will spend so much money on weapons, जैसे आपने बोला है, to protect the country, ऊपर स्पेस में भेज रहे हैं, कभी इधर भेज रहे हैं, कभी उधर। भाई अपने लोकल को, अपने बंदे को देखो, खाने का जगह है, रहने की जगह है नहीं। That is what our topic is, world peace. World peace can be attained अगर हम ये चीजें ना करें। एक तो आर्मामेंट्स बनाने खत्म करें। My God. It should be totally prohibitive not to produce any type of lethal armaments. कोई भी कंट्री ना बनाए। हमने कहीं देखो, पहले हमने रशिया से ये एग्रीमेंट किया था कि नो मोर न्यूक्लियर, Right. राइट। तो अगर जो न्यूक्लियर के ऊपर अप्लाई हो रहे हो, लोअर लेवल पर भी हो जाए कि ये खत्म करो इसको इसको, क्योंकि जितनी देर आपके पास हथियार हैं, उतनी देर तक वर्ल्ड पीस नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। Oh, सेकंड जो है, सेकंड जो है, ये बॉर्डर जो है, देखो ये साथ हमारे, अब जो कुछ हो रहा है नेशनल लेवल, इट इज आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, बट जो कुछ हो रहा है, इट इज सो डिस्टर्बिंग। तो जितनी अब डिवीजन होगी वो हेट के ऊपर है। जब किसी, देखो, इट इज ए साइकिल। इतनी इतनी बड़ी बढ़िया बढ़िया सिविलाइजेशन थी, यूनान, मिस्र, रोम, बड़ी बड़ी अपने टाइम में द क्लाइमैक्स थी, राइट। अब दे आर ऑल स्टोन्स, कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। वो इसलिए नहीं रहा, लेकिन अगर आप अपना इंडियन कॉन्टिनेंट देखो, 10,000 साल पुराने मंदिर अभी भी हैं। mm, हालांकि वहाँ इतने जालिम लोग आए, इतने मंदिर तोड़े, इतने गुरुद्वारे तोड़े, इतने लोग, हजारों लाखों लोग मार दिए, कन्वर्जन की, हैं, अपने बच्चों को दीवारों में चुना दिया, yeah, किसी किसी terrible, का सिर चॉप ऑफ कर दिया। terrible. इतनी
इतनी क्रूरटी के बावजूद ये मैं कह रहा हूँ कि उस कंट्री में अभी अभी जो एंशियंट चीजें थी उसकी जो है कंटिन्यूटी रही है, वो इसलिए रही है कि द थॉट प्रोसेस इज डिफरेंट, कि वी आर ऑल वन एंड अंटिल दिस यू आर माई एक्सटेंशन एंड यू आर माई इमेज। तो अगर मैं इसको बिलीव करता हूँ तो मैं आपका ख्याल रखूंगा, लेकिन उसकी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने लेवल पे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर बन जाने से बंदा नहीं चेंज होता। देखो ना, अब छोटी छोटी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जो जैसा बंदा है, अगर उसको आपने प्रेसिडेंट बना दिया तो बंदा तो वही है। वही अब आप उसको प्रेसिडेंट कह रहे हो, राइट? कल कल उसको आप लाइक नहीं कर रहे थे, आई नो आज। So the idea is for world peace, thinking has to be changed. And first of all, there should be a total ban on nuclear oh yeah armament. armaments armament. And second, these worship houses must consolidate and project the image of love, not hate and division. ये इनकी ड्यूटी है, बिकॉज लोग जाते हैं फेथ से। अगर आप वो सिखाते ही नहीं हो, अगर फूड के ऊपर जोर है, राइट, तो उसने सीखा तो कुछ भी नहीं। आप कर ही चलो जो करना, ऊपर के फ्लोर पे आपने कर लिया, नीचे जो तमाशा हो रहा है नहीं उसी जगह, इतना उसी जगह। लेविश खाना रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलते, जो कभी कभी जो मिलते हैं गुरुद्वारों में। इतना लेविश खाना, मैं क्या बोली, टू मच जलेबी है तो ये मिठाई, क्या क्या नहीं मिलता, आइसक्रीम, बच्चों के पिज्ज़ा मिल रहा है, कभी ये मिल रहा है, कभी चाइनीज, होना ये साउथ इंडियन, सांबर डोसा, आई मीन नो एंड टू इट, टू नहीं मच। होना, देखो, ये जो रिलीजियस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, होना तो ये चाहिए। एवरी वीक दे शुड प्रिपेयर फूड एंड पुट अप इन द वैन्स एंड गो टू द ऑर्फन हाउसेस, जहाँ प्योर लोग रहते हैं जिनको हिक्सविल वाला मिलता नहीं। हिक्सविल वाला गुरुद्वारा है ना, हिक्सविल में जो दरबार साहब, दरबार, वो एवरी मंडे the ladies go there, make the food and they send it to the port, different places, भेजते हैं वो मंडेज ये को। ये That's a ये good thing. ये Very good. That's it very should, good. yeah, it should be at a mass level। Yeah, एक very all the, yeah, exactly. सारे सारे रिलीजियस प्लेसेस ऐसी बात करें, अच्छा, yeah. क्यों? लेकिन वो करते नहीं। वो तो जो, देखो, मैं अगर गुरुद्वारा जाता हूँ, मैं आई एम ऑलरेडी वेल फेड, राइट, तो मेरा मॉरल नहीं बनता कि मैं खाऊं, क्यों? मैं तो खा सकता हूँ। खिलाओ उनको जो नहीं खा सकते हैं, तभी दुनिया बेटर होगी, तब आपके दिल में कंपैशन आएगा। अगर अगर आप अमीरों को ही खिला रहे हो तो वो तो घर से खा के आए हुए हैं, वो आधा फेंक देंगे, जैसे फेंकते भी हैं। Oh yeah. गरीब Why not? गरीब They, गरीब को yeah, देखो, can you do? Those किसी वो तो खैर during the COVID time they were doing a lot, you know. कोविड के टाइम इंडिया में भी बड़े लोग, बड़े या गुरुद्वारा, या बड़े या सब सारे वर्ल्ड में उन्होंने बांटा है। बस इज अ वेरी गुड, वेरी नोबल थिंग, वेरी गुड थिंग। और अभी भी करते हैं, जब कर रहे हैं क्योंकि लेवल में कर सकते हैं, यू नो। बट देखो, अगर अगर कोविड के टाइम में किया है या तो दे स्टिल डूइंग इट। नहीं, वी थॉट दैट वाज द बेस्ट। तो नो, यस, माय क्वेश्चन इज व्हाई यू स्टॉप्ड इट? व्हाई यू स्टॉप्ड इट? एक अच्छी चीज आप कर रहे थे। कोविड आए या कोविड जाए, इट हैज नथिंग टू डू। ये एक अच्छा काम क्यों छोड़ दिया आपने, हाँ, राइट? कईयों ने छोड़ा, कईयों people they started doing छोड़ very दो, good. बहुत कम हो गया। देखो ये, और देखो ऐसे ही नेशनल लेवल पर है, द रिचेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल कंट्री जो है, अफ्रीका में आधा अफ्रीका भूख से मर रहा है, I know, वही तो, that's लेकिन what हाँ, I'm saying. वी आर थ्रोइंग द फूड इन द सी। So much every day when I see, मैंने देखा है लेडीज सब कुछ टॉयलेट पेट में सब कुछ डालेंगी, पेट तो उतना ही है, यू कांट ईट सो मच, बट they take more than what they double than what they need. After a little while, oh नहीं मैं ये खाया, थोड़ा एक थोड़ा ये लिया, थोड़ा ये लिया, थोड़ा ये, बाकी सारा गार्बेज कर दिया। मैंने कहा टेक ओनली, आई व्हाट आई डू, आई मीन आई वांट टू ब्रैग, आई टेक वेरी लिटिल पहले से ही, जितना मैंने खाना उतना ही लेना है। व्हाई टू टेक मोर? अगर चाहिए देन यू कैन गो ऑफ द सेकंड टाइम एंड टेक लिटिल बिट मोर।
पहले से ही था डालो when you kind of need it. That's very bad, I think. compassion नहीं हमें compassion नहीं रहा at national level also जो हम इंडिविजुअल कर रहे हैं ऐसे नेशनल लेवल पे कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे भी क्योंकि बंदे तो वही हैं या मैं गेव But यू वैसे there are Nirinder ji, there are some very American restaurant हम high class restaurant होते हैं ना, when they the make extra when they have food left over, वो जो होते हैं ना होमलेस shelters में वहाँ डिलीवर करते हैं every day they left over, they don't throw it away, they go and deliver it there, तो वहाँ के लोग खा ले. That's a good thing. Why to Yep. throw it away? ये तो उनका रूल है, यहाँ तो गार्बेज करो, यहाँ उनके वैन लॉन्च जाती है, टेक इट टू द और एक देखो ये फूड की भी नहीं बात होती इट इज द थॉट यू आर थिंकिंग या थिंकिंग इज बेस्ड ऑन कंपैशन तो आप उस चीज का अभ्यास कर रहे हो फूड तो दे ही रहे हो लेकिन जो पर्सनैलिटी में जिस चीज का आप अभ्यास कर रहे हो उसकी तरफ ध्यान होना चाहिए कि मेरी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है कि मैंने इस चीज का अभ्यास किया है राइट अगर मैं आप किसी से हेट करता हूँ और हेट करी जाऊँ तो वो मैं उससे नहीं बाकियों से भी शुरू कर दूंगा क्योंकि मैं हेट की प्रैक्टिस कर रहा हूँ so that is what it is so our topic is world peace right how to attain it right. the first thing is the abandonment total ban on the nuclear weapons Oh yeah, that yeah. is second जो है वो ये जो हमने अपने लेवल पे सोशल लेवल पे क्योंकि कंट्री इज मेड ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी में हम रहते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इफ आई वांट a world peace I should become peaceful charity begins at home तो अगर आपने प्रैक्टिस की है करिए. अपने लेवल पे तो कल को आप प्रेसिडेंट बन जाते हो तो यू विल बी पीसफुल प्रेसिडेंट अगर मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की है पॉलिटिक्स में घूमता रहा तो ऐसे के ऐसा मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो देन आई विल डू द सेम थिंग व्हाट आई एम डूइंग नाउ so that is what is happening so we should at our own level re-examine ourselves हम करते क्या हैं किस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर मैं कंपैशन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ एम्पैथी की आपका दुख मेरा दुख आपका सुख मेरा सुख ऐसी अगर मेरी थॉट है तो वर्ल्ड विल बिकम पीसफुल Peaceful, yeah. अगर कंपटीशन में मुझे मज़ा आ रहा है कि भाई नहीं मैं इनसे बेटर हूँ और जो अपॉर्चुनिटी अगर इनको मिलेगी तो मैं बीच में जो है रोड़ा लड़काऊंगा इनको नहीं मिलनी चाहिए राइट क्योंकि मैं इनसे बेटर रहना चाहता हूँ तो इंस्टेंट रिप्लेस द कंपटीशन विद कंपैशन वो नहीं हम कर रहे कि देखो एक मंत्र है जिसकी मीनिंग है कि योर प्रोग्रेस इज हिडन राइट माई प्रोग्रेस इज हिडन इन योर प्रोग्रेस तो अगर मैं आपके प्रोग्रेस में मदद करता हूँ हेल्प करता हूँ तो मैं इनडायरेक्टली अपनी मदद भी कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कंपैशन की इंस्टेड ऑफ कंपटीशन दैट इज व्हाट इट मैटर्स उससे दुनिया बेटर रहेगी जब स्मॉल स्केल पे पीपल आर पीसफुल homes are peaceful then the city will become peaceful then the state will become peaceful then the country will become peaceful Exactly. then the world will become peaceful and that is the idea the United Nations came into existence after World War II because 50-60 million people were killed Killed. I know. Unnecessary. कोई क्या जरूरत थी उसकी? What was the idea of all that? just in a matter of 5-6 years. Second World War started in 1939 Yeah. and it was finished in 1945. Right. In this short period of time, 60 million people were massacred. So इसलिए they said enough is enough. So they came together, the wisest people of that time, and created United Nations organization, right? लेकिन अब यूएनओ की एक तो जो यूएनओ में जो बंदे हैं वो भी ऐसे ही हैं
नहीं, वो this भी is kind of a failure yes, online. He prosper नहीं है, nothing good came out of it. They didn't do anything much. कुछ yeah, solve तो कर नहीं सके, कुछ भी नहीं कर सके. Anyway, there are problems, they can't solve anything. yeah. They And can't. the idea is we should not become pessimistic, but the idea is for this discussion is peace starts with you and me. So it is your moral, Right. ethical, religious duty to become peaceful on a daily basis. Watch your conduct, what you do. And secondly, this everything is related to the food also. We Oh, are what we eat. English में हम कहते हैं we are what we eat. So garbage in, garbage out. Be yes. very careful. It is your body what goes in. Be qualitative, Right. and your physical body will be better. Your emotional body will be better. And start doing at every level meditation and yoga. Meditation is to manage your mind. Mind. Manage your mind. When you manage your mind, then you are more peaceful. Well, When the mind is scattered, when the mind is focused, it is peaceful. When mind is not focused, it is a problem. It is a problem. People lose sleeps, blood pressure high, A1C high. It is only because mind is not peaceful. Mind is not peaceful. So practice meditation and yoga. नहीं पता तो जो कर रहे हैं उनसे पूछो. And practice. so, It is free. It yeah. is free. Oh, yeah. वाहे गुरु ने हमारे शरीर में सारे सब कुछ दिया हुआ है. We must know the technique how to tap those resources. So the world peace, meditation and yoga, everybody, if you practice that, people will become peaceful. शांत बन जाएंगे. वो डॉग रेस खत्म हो जाएगी. Yeah. Yeah. Then that was our topic. Yeah, thank you so much. It was a very wonderful topic, and we all should learn something from it. Like, Yeah. and also I would like everybody's जो आ रहे हैं हमारे program में इसमें input थोड़ा give us some input of what you think about the same topic. So let us know what are your comments and what are your thoughts about this Yeah. thing. That's what we like to know. And thank you so much for joining today. And we'll be back here soon. Next week, हमारा program है. We're going to be having I think the 6th Navratri. So we'll be having a program here regarding that. Next Friday, we're going to have a DDG team will be coming. So please watch out. And then Wednesday, we'll let you know what program we're going to have. So meantime, have a wonderful weekend and be safe. And rewind this program and listen to it again, because you'll get a lot of things. Second time around, you learn more, much more. सारी जो चीज़ें मिस हो गई या कुछ, you can listen second time. So that's the thing. Thank you so much, Narinder ji. Thank you for coming. Thank you so much. And I want to thank everybody else. And I'll say goodbye and have a wonderful day. Thank you. Now उसको समझ आ गई है, खत्म हो गया. And he's telling me to get up now. मैं आपको कॉल करूंगी नरेंद्र जी. I will call you. Okay. Okay, we will come. Thank you. Thank you, Vinay. Thank you. Have a good day. Thanks, you And too. give my regards to Lama साहब. Yes, I And will. बच्चों को प्यार दें. Thank you. I will. Yes. Okay, जी. Yes.